Hello, dear aspirants. Today, yet again, I'm going to discuss very important chapter. Uh, Questions from direct and indirect speech are asked not only in university, college examinations, but also in almost all the competitive examinations for recruitment to various categories and grades of officers and officials. So look at the board for direct and indirect speech. Direct speech. See, direct and indirect speech, it's also called direct and indirect narration. So this definition, introduction first. Anything spoken or written by someone can be reported in two ways, direct and indirect. So you can look at the board, direct speech or narration, when the reporter puts the exact words of the speaker or the writer. It is called direct speech or direct narration. Direct speech is put within single or double inverted commas. That is also called quotation marks. Most of you must be acquainted with that. So this is what single inverted comma. You can see here, this is single. Single means one inverted comma. But when it comes double, you see here, these are double, means two inverted commas for each. This is double inverted commas and single inverted comma. This you must identify because it's very important, because all direct speech must be enclosed, must be put within either single inverted comma or double inverted comma. Both can be used identically and as quotation marks to quote someone. Now, reporting, what are the important components of narration or speech, especially direct speech? When we talk of reporting verb, that's very important. Reporting or introductory verb. A reporting verb is also called introductory verb because it introduces. So the verb which reports, the verb which reports or introduces the speech is called a reporting or introductory verb. A reporting verb is the verb of the sentence that remains outside the inverted commas, outside the quotation mark, outside the inverted comma or outside the quotation mark. So that's very important to note, and direct speech is put within inverted commas. ये क्लियर होना है कि डायरेक्ट स्पीच, जब रिपोर्टर किसी के स्पीच को कोट करता है तो उस वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा, जिसको कोटेशन मार्क भी कहा जाता है, उसके अंदर देना है। और डायरेक्ट स्पीच की सबसे पहले पहचान यही है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो जब कोटेशन मार्क्स हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वो डायरेक्ट स्पीच है। ये यहाँ पे कहा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच इज पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमा. So direct speech is always put within inverted commas. Read the following example. Now just do it. Rabbi said to Anna, I shall help you. So here you see, which is reporting verb? A reporting verb here is Ravi said to Anna. So said to Anna, this is reporting verb. No, this is reporting verb or introductory verb. And I shall help you within inverted comma. It can be either single inverted comma or double inverted comma, no problem. So I shall help you, this is
Example of direct speech. This is direct narration, direct speech. Now here, said is what? I already put it. Said is a reporting verb, or you can call it direct speech. Now let us change this into indirect speech. So indirect speech में आप इसको चेंज करते हैं. रवि told Anna that, यहाँ डेट क्यों लग रहा है? डेट इसलिए लग रहा है कि ये असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो रवि टोल्ड आना, एंड टोल्ड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये भी है, ऑब्जेक्ट है. रवि टोल्ड टू होम, टू आना. तो रवि टोल्ड आना कंप्लीमेंट है. तो रवि टोल्ड आना दैट ही वुड हेल्प हिम. ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया. दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन. Now come to direct speech. Reported speech or indirect speech. Reported speech is also called indirect speech. When the reporter reports without quoting the exact, you see here, when the reporter reports without quoting the exact words of the speaker or writer, it is called reported speech or indirect speech or narration, indirect narration. This is important to remember. Definition of indirect speech. This is the reason that indirect speech or narration is not put within quotation marks or inverted commas. Changing from direct to indirect speech means how to change. How to change. While changing from direct to indirect narration or speech, several changes occur and most of them differ from one to another kind of sentence. So this is important. तो अगर आप याद करो वॉइस चैप्टर, तो वहाँ भी मैंने बताया, अभी फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आप नरेशन अगर समझना चाहते हो तो आपको पर्सन्स, टेंसेस का वीडियो पहले देखना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, क्योंकि जब तक आप पर्सन्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और ये टेंस जब तक आप नहीं समझते हो तब ये नरेशन समझ में नहीं आएगा और आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में परेशानी होगी. तो इसलिए ये सारा चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है, आपको याद होना है. तो सबको आइसोलेशन में नहीं सीख सकते, एक साथ इंटरकनेक्टेड है. लेकर चलिए, पर्सन्स जानिए, पर्सन्स का वीडियो हमारा देखिए, फिर उसके बाद टेंस पर जो हमने वीडियो बनाया वो देखिए, सेंटेंस का वीडियो देखिए, तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा. इसलिए यहाँ है काइंड ऑफ सेंटेंस. बट अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक रूल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर सर्टेन रूल्स. तो ये क्लियर है कि जब आप नरेशन चेंज करते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो हर तरह के सेंटेंस को बदलने का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अलग अलग रूल्स हैं. दे आर कॉल्ड स्पेसिफिक रूल्स. जैसे अगर असर्टिव सेंटेंस है तो अलग रूल अप्लाई होगा, इम्परेटिव है तो डिफरेंट रूल्स आपको यूज करना होगा, इंटरोगेटिव दैट इज क्वेश्चन मेकिंग तो डिफरेंट रूल्स, फिर आगे उसी तरह से एक्सक्लामेशन है तो अलग रूल लगाना है. लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हर तरह के सेंटेंस और हर तरह के टेंस का नरेशन चेंज करने में, बदलने में यूज होता है, उसको हम कहते हैं जनरल रूल्स. तो जैसे दैट अप्लाई टू ऑल ना, देयर आर सर्टेन जनरल रूल्स दैट अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल हियर,
the rules which apply to all kinds of sentence in direct speech, that is within quotation marks, while changing into indirect narration or speech. तो यहाँ पे देखते हैं, अभी ध्यान से आप इसको पढ़िए भी और सुनिए, समझने का कोशिश कीजिए और हंसते हंसते नरेशन सीखिए। ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत डिफिकल्ट है। दिस इज माई सीरीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर मेड इजी, और सारी चीज़ हम अपने जो लिखी हुई हमारी किताबें हैं उसी से मैं लेकर यहाँ ही कर रहा हूँ, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ और इजीली समझ पाएँ। चेंज ऑफ पर्सन्स, जैसे पर्सन्स विद इन इन्वर्टेड कॉमास चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। क्या है वो रूल, ये मैं आपको ये भी बताऊंगा। बहुत ज़्यादा कम से कम एक मंत्र दूंगा, एक मैजिक है जिसको आप याद रखोगे तो पर्सन्स कैसे चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के टाइम, वो आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे फर्स्ट, उसको हम सन फॉर्मूला कहते हैं, सन फॉर्मूला। जैसे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड इफ थर्ड पर्सन नो चेंज। तो उसको इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट पर्सन ऑफ डायरेक्ट स्पीच चेंजेज इनटू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच चेंजेज इनटू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। फिर अब यहां देखिए, सेकंड पर्सन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच चेंजेज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। उसी तरह थर्ड पर्सन कैसे चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन ऑफ डायरेक्ट स्पीच, ये इंपॉर्टेंट है, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। इन ब्रीफ द रूल्स रिगार्डिंग चेंज ऑफ पर्सन कैन बी सब्सटेंशिएटेड एज follows। देखिए, ये देखिए, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये आप याद रखो रिगार्डिंग चेंज ऑफ पर्सन, तो कभी आपसे गलती नहीं होगी नरेशन चेंज करने में। पर्सन्स के लिए आप कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। जैसे फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन देयर विल बी नो चेंज। सो यहाँ एस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एंड एन no change. Example, first person changes into person of the subject, O for object, second person according to person of object, and third person no change. This is why SON formula, first person subject, second person according to object, and third person if within direct speech there will be no change. So N for no change, नो चेंज। अब इसको एग्जाम्पल्स में देखते हैं। देखिए, प्रिया टोल्ड मी, प्रिया टोल्ड मी आई शैल प्रिपेयर कॉफी फॉर यू, आई शैल प्रिपेयर कॉफी फॉर यू। तो ये यू यहां कर सकते हैं, फॉर यू। यहां देखिए, प्रिया टोल्ड मी आई शैल प्रिपेयर कॉफी फॉर यू। तो यहां कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां क्या है, प्रिया है। तो ये एक लड़की का नाम है, फेमिनिन जेंडर है, इसलिए यहां पे देखिए, प्रिया टोल्ड मी that I changed into she, why, into person of subject। तो यहां ये क्या हो गया, प्रिया told me she would prepare coffee for me, you that is second person ना, changes according to object। so this यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आप को क्लियर है। यहां फिर से जाते हैं, दिखाते हैं यहां क्या कह रहा है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, प्रिया, नेम ऑफ ए गर्ल, तो ये शी में बदल गया इनडायरेक्ट स्पीच करते समय।
फिर इसी में ये मी, ये ऑब्जेक्ट है इसका रिपोर्टिंग वर्ब का, प्रिया टोल्ड मी, तो ये किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ये है ये अगर सेकंड पर्सन है तो वो कहाँ चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन अगर है, यू है, तो ये अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हुआ यू। ये क्या है, ये सेकंड पर्सन है। और एज पर रूल्स रिगार्डिंग चेंज ऑफ पर्सन्स, ये क्या होना चाहिए, यहां देखिए सेकंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सेकंड पर्सन जो है डायरेक्ट स्पीच का, तो ये कैसे चेंज होगा, ये अकॉर्डिंग टू पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होगा, इसलिए ये मी यहां आया इन डायरेक्ट स्पीच। तो ये क्या था, ये था आपको डायरेक्ट, और ये हो गया इनडायरेक्ट। इसी तरह नेक्स्ट लीजिए सेकंड एग्जांपल, द फादर सेड टू मी यू शुड रेस्पेक्ट गुड टीचर्स। द फादर सेड टू मी यू शुड रेस्पेक्ट गुड टीचर्स। अब इसको चेंज कीजिए, ये डायरेक्ट है डायरेक्ट, यू क्यों डायरेक्ट है, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट इसलिए है कि विद इन इन्वर्टेड कॉमा है, और रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट कर रहा है पुटिंग एग्जैक्ट स्पीच एज स्पोकन बाय द फादर। द फादर टोल्ड टू होम, टू मी, यू शुड रेस्पेक्ट गुड टीचर्स। अब इसको चेंज कीजिए, द फादर टोल्ड मी दैट, ये यू क्या है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो द फादर टोल्ड मी दैट, सो मी दिस ऑब्जेक्टिव फॉर्म, बट यहां क्या आएगा, नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ मी इज आई, सो आई शुड रेस्पेक्ट गुड टीचर्स। दिस इज व्हाट, दिस इज इनडायरेक्ट। यहां ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखिए कि ये टीचर्स चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा टीचर्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, सो टीचर्स टीचर्स ही रहेगा यहाँ पे भी, इनडायरेक्ट में भी। यहाँ आपका रूल्स में जाइए, फिर वापस सन फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए, तो सन फॉर्मूला में क्या कहता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इसलिए वहां थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, इसलिए टीचर्स टीचर्स ही रह गया, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जकी सेड टू मी, जकी सेड टू मी ही विल बाय ए बुक, ही विल बाय अ बुक, जकी सेड टू मी ही विल बाय अ बुक। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, जकी टोल्ड मी, और ये याद रखिए कि टोल्ड के बाद टू नहीं यूज होगा, और टोल्ड तभी आएगा जब वहां ऑब्जेक्ट भी हो। अगर यहाँ सिर्फ है जकी सेड और टू मी को हटा दीजिए तो टोल्ड नहीं होगा, तब तो सेड ही रिटेन करना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच में भी। तो जकी टोल्ड मी दैट ही वुड बाय अ बुक, यहाँ ही है डायरेक्ट स्पीच में, व्हाट पर्सन इज ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, तो इसलिए यहाँ थर्ड पर्सन नो चेंज, a third person में no change. Recall the sun formula regarding it. So likewise today here all this explanation analysis it's not changed. So today we have learned what is direct speech, what is indirect speech, and what is reporting verb, and in what is inverted comma, that is also called quotation mark, and how persons of direct speech are changed, what are the formulas, what are the rules followed for that formula. The main is to remember sun formula. First person changes according to person of the subject, second person according to person of the object, and if third person there is no change. This is why sun formula. First person according to subject, S for subject, O for object, and N for no change. Hope that you are learning it.
under the series English Grammar Made Easy. So just be with me, like, share, subscribe, and help your other friends also to get connected with me. So, and to be continued, the remaining part of the this narration in the next class, next video. Until then, goodbye.